He's an entrepreneur and a yogic teacher, and uh, now he heals people now. And earlier, his past avatar was he was a martial artist, and he has empowered so many people, especially women, um, in South India, to take control of their life. And he has a very illustrious career. So now he's a yoga teacher. He teaches people yoga, and teaches them how to teaches people who are into disease to how to heal themselves by his therapy. So, Ashwin, I hope I have introduced you correctly, and you can add to it if you want. Hi, Manas. Thanks for inviting me. Yes, the introduction is quite accurate. I've been into healing and martial arts, and also yoga. So this combination helps me to get to the root of the issue and solve problems for people. Yeah, my next question is coming from that only. So, from body to mind, you have transitioned from body to mind, and because is it mind over body, or is it mind plus body? And my specific question is, what is the root cause of disease? What is why this causes? Is it because of imbalance in the mind, or you please explain it? So all disease is wrong use of something. Okay, so if I have a razor, let's say I have a razor. So if you use it wrongly, if I use that razor to cut paper, for example, after some time it won't cut my beard Yeah, because I've yeah, used it wrongly. yes, So everything is designed to be used in a particular way. If you put diesel in a petrol engine, it won't work. yes. So we are so busy being unnatural with our body and mind. We're trying to get into unnatural arrangements, natural lifestyles, natural relationships. So that's why we put strain on ourselves and our body is confused. After this many years of evolution, suddenly we're using it in a way that it has not evolved to be used. And that is the root cause of all diseases. Okay, so there is, of course, the environment also, which is also not at all natural now. The pollution, the toxins, the radiation in our environment is also affecting our health. So these are the root causes. But the miraculous thing is that the body can recover by itself without any medicines if you bring it back to its natural state. That is the idea in all naturopathy and natural healing like yoga and other such systems. Okay. So my next question is coming from this only. So we have to be preventive in the sense that before the disease transitioned into degenerative state, uh, to control the disease, or because I have seen that once it reaches the stage of degeneration, जब जब अल्सर बन जाता है, जब कैंसरस या ट्यूमर ज़्यादा बड़ा हो जाता है, तो आई हैव सीन दैट नो थेरेपी, आइदर इट इज़ एलोपैथी, होम्योपैथी, और एनी अदर थिंग, just doesn't work. I can vouch for the allopathy because I've been a patient of ulcerative colitis. I tried everything, homeopathy, naturopathy, allopathy, and everything. But I had to lastly I had to settle with the allopathy because they were not able to cure it, so to say, but they were trying to bring into remission. So for that to happen, I had to continuously take the medicines. एंड आई वॉज ऑलवेज वरीड अबाउट इन द बैक ऑफ माई माइंड कि वो पीछे क्या साइड इफेक्ट हो रहा होगा उस मेडिसिन का, क्योंकि आई कुड नेवर गेट द फुल सोल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम, नो क्योर, नथिंग, जस्ट रेमिशन. आई वॉज अफ्रेड टू से दैट आई एम क्योर्ड ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस. तो क्या किसी बीमारी को एक स्टेज तक के पहले पहुंचने के पहले उसको हम प्रिवेंशन पे ही काम कर लें, तो व्हाट इज मुर्गी अंडे में कौन पहला आता है कि हम प्रिवेंशन पे ही काम करते रहें हमेशा, तो सेट वी विल बी एबल टू, हम उसको देर तक बीमारी को. ऐसी कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल से मैं जी. समझाता हूँ आपको. इमेजिन देयर इज अ बोट. ठीक है, एक नाव है जिसमें एक छेद है.
और उस छेद के अंदर से पानी भर रहा है नाव में, ठीक है। तो दो काम करने होंगे आपको। एक तो छेद को बंद करना होगा, ये रूट कॉज है, क्योंकि इसी से पानी आ रहा है, तो उसको रोकना होगा, रिपेयर करना होगा, ठीक है। और जो पानी ऑलरेडी है नाव के अंदर, तो उसको एक बाल्टी लेके आपको बोट से निकालना होगा, वी हैव टू थ्रो इट निकलना आउट। पड़ेगा, है हाँ, ना। या तो दीज आर टू एस्पेक्ट्स ऑफ हीलिंग। वन इज जो फिक्स द रूट कॉज, दूसरा जो है जिसका इफेक्ट हो गया है ऑलरेडी, तो उसका भी इलाज करना होगा, ठीक है। तो इफ यू फोकस ऑन दीज टू थिंग्स, एनी डिसीज कैन बी क्योर्ड। Ulcerative colitis is actually very easy to cure because the root cause is also known, and how to remove the effect is also well known in our systems, our traditional systems, and also in the modern scientific research. Lot of new information has come forward, and with this information, it's very easy to cure ulcerative colitis now. But obviously, since people are so busy using the old knowledge, they're not able to cure. So healing में जो पहला आपका उसूल है, ये है कि you have to stay abreast with the latest knowledge. If you don't have this principle working behind you, then you will fail as a healer. सो यू आर सेइंग कि जो एंशंट नॉलेज है हमारा, विच विच वी हैव देयर इज ट्रेडिशन ऑफ एंशंट नॉलेज, तो उसमें भी लेटेस्ट से अब्रेस्ट होना पड़ेगा, लेटेस्ट के बारे में जानना पड़ेगा, या यू टॉकिंग ये अबाउट? I'll tell you why, क्योंकि हमारे जो वेस्टर्न साइंस है वो फिजिकल बॉडी पे आधारित है। सिर्फ फिजिकल बॉडी उनको दिखता है, हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड नहीं दिखता है। लेकिन है, इंस्ट्रूमेंट्स अभी आए हैं जिसके मदद से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को भी नाप सकते हैं, लेकिन इसको यूज ही नहीं करते। डॉक्टर लोगों को ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स देंगे तो उनको पता ही नहीं कि क्या करना है इसको बिकॉज दे आर लेके। नॉट टॉट अबाउट इट। बिकॉज ये इसका एक्सप्लोरेशन हुआ था एंशिएंट नॉलेज में। तो अभी दोनों का एक मीटिंग प्लेस आ गया है, जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड है और जो हमारे फिजिकल मैटर है, जो सेल्स है और माइटोकॉन्ड्रिया है और जो भी है हमारे शरीर, बिकॉज कुल मिला के होंगे अबाउट अबाउट 100 मिलियन और नो 10 बिलियन, 10 बिलियन सेल्स है एक आदमी के शरीर में, ठीक है। और इसमें 1 बिलियन ह्यूमन सेल्स है, और इन ह्यूमन सेल्स के अंदर 200 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं एक एक सेल के अंदर, ठीक है। और नर्व सेल है तो 2000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज एन इलेक्ट्रिक थिंग जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा बॉडी का इलेक्ट्रिसिटी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग विच नोबडी स्टडीइंग। थोड़ा सा हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट से हमारा इलेक्ट्रिसिटी बन जाता है, लेकिन ज़्यादातर एजुकेटेड जो एमबीबीएस किए हैं, एमडी किए हैं, उनको ये पता नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली ही सेल का एक्सचेंज होता है अपने एनवायरनमेंट से। तो अगर सेल हैज अ नेगेटिव चार्ज, देन ओनली इट कैन एक्सचेंज इट्स मटेरियल, can let out its waste and take in the nutrients या and keep out the toxins. All of this is possible अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी ठीक है। तो 99% लोगों की बैटरी डाउन है, उनकी इलेक्ट्रिसिटी ठीक नहीं है, और उसकी वजह से अब उनका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड भी कम है, और उनका पेशेंस भी कम है, टॉलरेंस भी कम है, झगड़ते रहते हैं हमेशा एक दूसरे से। और ये सब कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है हीलिंग के लिए। अगर हम हमेशा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहेंगे, और स्पेशली खाने खाने से पहले, अगर हम स्ट्रेस में खाएंगे, स्ट्रेस के विचार करके हम खाएंगे, तो वी कैनॉट एक्सपेक्ट टू हैव एनी काइंड ऑफ डाइजेशन, एंड दिस इज द बिगिनिंग ऑफ अल्सरेटिव कोलाइटिस। And it always starts with some kind of acidity or some kind of indigestion or some gas formation.
ये सब हो रहा है क्योंकि हम अपने डाइजेस्टिव जूसेस प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बॉडी मानता है कि आप स्ट्रेस एनवायरनमेंट में हो और डाइजेशन करने की अभी कोई फायदा नहीं है इस एनवायरनमेंट में। तो बॉडी इज वेटिंग फॉर यू टू गेट आउट ऑफ दैट एनवायरनमेंट, फॉर यू टू for it to digest itself, all the food inside. But what's happening is आप इस environment से निकल नहीं रहे हैं, क्योंकि हमेशा आपका ओवर थिंकिंग रहता है। हम्म। जो हम्म। हमारे स्ट्रेस के बारे में है, हमारा हमेशा ओवर थिंकिंग रहता है, और वो माइंड को डिसिप्लिन करना मेडिसिन में है ही नहीं। डॉक्टर लोग आपको प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखते कि ये मंत्र पढ़ो या ये फोकस एक्सरसाइज करो या योगासन ये करो, क्योंकि योगा हैज डोमिनियन ओवर द माइंड। जो हमारे माइंड को कंट्रोल करने में जो भी टेक्निक्स हैं, योगीज हैव एक्सप्लोर्ड एंड फाउंड आउट एवरीथिंग इन द पास्ट। दैट्स व्हाई हमें पास्ट में भी देखना है टेक्निक्स के लिए, और फ्यूचर में जो रिसर्च हो रहा है, जो कंटेम्प्रेरी रिसर्च हो रहा है, उसका टेक्निक्स भी लेके वी हैव टू क्रिएट अ होलिस्टिक सिस्टम। यही मैं और मेरा टीम कर रहे हैं। वाह, मेरा यही नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला था इसी के ऊपर कि अगर इफ़ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, सो I have always known and I always believed in the rich tradition of Ayurveda and the ancient healing. लेकिन जब मैं but I have lived in the city for all my years, so and I have studied and I have western science को भी काफ़ी इधर उधर मतलब मैंने जगह जगह रिसर्च करके उसके बारे में पढ़ा। तो यू टॉक्ड अबाउट द वेस्टर्न साइंस एंड द इंडियन एशियन साइंस। अभी क्या हो रहा है कि हम now we are living in an environment where the mind is has become very logical. क्वेश्चन पूछता है अंदर से, ऊपर से तो हम बोलते हैं कि वी आर बिलीव इन ट्रेडिशनल साइंस और ये अच्छा है, वो आयुर्वेदा वाला अच्छा है, और भी बिलीव कि होम्योपैथी मेडिसिन का साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन वी नेवर आर श्योर अबाउट व्हाट दे पुट इनसाइड। लेकिन जो वेस्टर्न साइंस का एलोपैथी मेडिसिन है, वहाँ डॉक्टर्स जो बोलता है, हमने उसका भी मेडिसिन का इंग्रेडिएंट सारा लिखा हुआ है, हमने पढ़ा, और वहाँ पे लॉजिकल माइंड हमारा आराम से उसको बिलीव करके दवाई मेडिसिन एलोपैथी खा लेता है। तो देर इज ऑल दिस, इफ आई टॉक अबाउट माई सेल्फ, देर इज ऑलवेज अ फाइट बिटवीन द एंशियंट मेडिसिन एंड द वेस्टर्न थिंग। नाउ यू हैव सेड दैट नाउ दे आर कमिंग ऑन अ मीटिंग पॉइंट, सो दैट्स वंडरफुल थिंग। अगर इसमें आप कुछ और ऐड करना चाहें तो। और दूसरा सवाल यही है कि अगर हम वी आर लिविंग इन द सिटी, हाउ कैन वी अवॉइड not having stress, not, I mean, most of the time when we are eating, we are watching TV or looking at the cell phone. And cell phone has like taken away our souls. I mean, everybody is always dived into their mobile phones, whether they are traveling, whether they are at home, and they are not giving them, family is not having quality time with each other. You are perfectly right. And then we don't talk about the real issues, and then we have this stress. I think I'm right. Yeah, absolutely, because honest communication is at the root of health। ये आप समझ लो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होती है वो अपनी फैमिली से ही, नहीं तो अपने वर्क प्लेस पे किसी के साथ उनका डिसएग्रीमेंट चल रहा है, या उनका कुछ एंगर इश्यूज चल रहे हैं उनके साथ, ठीक है। और द सोल्यूशन फॉर ऑल दिस इज ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। निडर होके हमें सच सच कम्युनिकेट करना है जो हमारे दिल में है। अगर ये करने की हम हिम्मत रखेंगे, तब हमारे हेल्थ इश्यूज भी अपने आप चले जाएंगे, क्योंकि जो प्यार है और जो अफेक्शन है जो हमें मिलना चाहिए हमारे एनवायरनमेंट से, वो फिर से जाग उठेगा। लेकिन क्या होता है, हमेशा एक मैरिज में या एक रिलेशनशिप में बिटवीन अ पेरेंट एंड अ चाइल्ड, हम दूसरे आदमी को होपलेस मान लेते हैं कि उनसे बात करने की कोई फायदा नहीं है, ऐसे हम समझ के कम्युनिकेशन बंद कर देते हैं। अगर कम्युनिकेशन बंद हो गई, तो मान लो कि आपने एक टिकट लिया है क्रॉनिक डिसीज के लिए, ठीक है, क्योंकि इसका असर हमारे मेटाबॉलिज्म पे इमीडिएटली पड़ता है। अगर हम नाखुश हैं
किसी सिचुएशन से या किसी भी आदमी से, तो हमारा नर्वस सिस्टम शिफ्ट हो जाता है टू सिंपैथेटिक अराउजल। ओके। और ये साइंटिफिक फैक्ट है। तो अगर सिंपैथेटिक अराउजल में आप आ गए, तो आपका कैपेसिटी है सिर्फ कॉर्टिजोल प्रोड्यूस करना। और कॉर्टिजोल इज अ वेरी टॉक्सिक एंड इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंस, जो यस यस। it will inflame the abdominal walls also. हम्म Second thing is biliary production is reduced, and it becomes 20% biliary juice production. हम्म And stomach acid production becomes also 20% of what it is capable of. So अगर stomach में pH ज़्यादा हो गया, ज़्यादा alkaline हो गया, तो क्या होगा? बैक्टीरिया, डिफरेंट काइंड ऑफ बैक्टीरिया ग्रो। स्टमक में हमेशा होते हैं बैक्टीरिया, लेकिन दोज बैक्टीरिया हेल्प अस टू डाइजेस्ट। लेकिन अगर हमारे पीएच में चेंज आ गया, क्योंकि हम हमेशा स्ट्रेस रिस्पॉन्स में रहते हैं, और आप भी सोच लो कि आप भी अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट रह चुके हैं, बिफोर द एडवेंट ऑफ इट, बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर अल्सरेटिव कोलाइटिस, आप भी ऐसे कोई स्ट्रेस से गुजर चुके होंगे, यस जहाँ पे यस। आपने ओवर थिंक करके आपने खाना खाया है। तो एब्सोल्युटली। ओवर थिंक करते वक्त अगर हम खाना खाएंगे, या एक और बात, अगर आप कोई सास बहू सीरियल देखेंगे जब आप खाना खाते हो, तो वहाँ हमेशा स्ट्रेस एनवायरनमेंट ही रहता है। वो म्यूजिक भी है ऐसा है, और विजुअल्स भी ऐसे हैं, और सिचुएशन भी ऐसे हैं, तो हमारा ब्रेन मानता है कि हम भी इस सिचुएशन का एक हिस्सा है, इसलिए हम इसको एंजॉय करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एड्रेनालिन राइज होता है। तो एड्रेनालिन कॉर्टिजोल रख के अगर हम खाएंगे, तो मान लो कि आप 20% डाइजेस्टिव कैपेसिटी पे अपना काम चला रहे हैं, और 20% इम्यून सिस्टम में आप अपना काम चला रहे हैं। डाइजेशन में आप शायद जानते नहीं होंगे, इम्यून सिस्टम भी इन्वॉल्व है, या क्योंकि एब्सोल्युटली। फूड के साथ टॉक्सिन्स भी आते हैं, और एंटी एंटी न्यूट्रिएंट्स जो बोलते हैं वो भी आते हैं। तो उनको हैंडल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। लेकिन स्ट्रेस रिस्पॉन्स में इम्यूनिटी भी 20% हो जाता है। तो हम 20% अगर हम काम करेंगे तो कोई रिजल्ट नहीं, इसको फेलियर ही मानते हैं। मतलब 35 से कम हो गया मार्क्स आपको, तो आपको स्कूल में भी पास नहीं होंगे। तो आप यस। 20% में, आप 20% लेके आप अपना डाइजेस्टिव काम कर रहे हैं, एग्ज़ाम दे रहे तो हैं। जरूर पता नहीं कुछ ना यार। कुछ होगा। अगर अल्सरेटिव कोलाइटिस नहीं हुआ, हाँ। तो और कुछ हो जाता है, ऑटो इम्यून डिसीज हो जाता है, या और कुछ हो जाता है। ये एक रूट कॉज है। दूसरा रूट कॉज है कि हमारी एंथुजियाज्म में हम फार्मिंग करते वक्त क्या करते हैं, अननेचुरली वी ट्राई टू ग्रो द क्रॉप्स। और इसका जो भी हम टेक्निक्स यूज करते हैं, दैट इज क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ इमरजेंसी इनसाइड द क्रॉप, इसलिए वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है, जो फ्रूट्स हमें मिलते हैं, या जो वेजिटेबल्स हमें मिलते हैं, मिल्क या जो ऑल्सो। ग्रेन्स हमें मिलते हैं, वो हमेशा इतना सारा नहीं प्रोड्यूस होता है नेचर में, अननेचुरली इतना सारा हो रहा है, क्योंकि हमने उस प्लांट के अंदर जीएमओ करके, हमने इस प्लांट के अंदर इमरजेंसी इंट्रोड्यूस किया है। तो उसमें एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए, जो प्लांट्स हैं। जब हम वो एमआरएनए खाते हैं, तो हमारे अंदर भी एक इमरजेंसी प्रोड्यूस हो जाता है, और लोगों को बेवजह एंग्जाइटी हो जाती है। बेवजह कोई नहीं, शॉकिंग। मतलब कुछ वजह नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, हम्म रिलेशनशिप ठीक चल रहा है, हम्म अपना जॉब ठीक चल रहा है, बच्चे हम्म बच्चे सब ठीक है, फिर भी एंग्जाइटी। हम्म ठीक है, और ये एमआरएनए से आ रहे हैं। हम्म तो इस दिस टाइप ऑफ प्लांट्स, जो जीएमओ क्रॉप्स होते हैं, जैसे कॉर्न, सोया, व्हीट, इसको लेके हम एनिमल्स को भी खिलाते हैं, तो हमारा दूध में भी वो स्ट्रेस आ जाता है, और ऑक्सीटोसिन देते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन भी देते हैं। और ये सब हमारे ये सब स्ट्रेस केमिकल्स एक साइड हो गया। फिर स्ट्रेस पैदा करने वाले केमिकल्स एक साइड हो गए हैं, जैसे ग्लाइफोसेट, जो हमारे क्रेब्स साइकिल में इंटरफेयर करता है। और खास करके एक शिकीमार्ट पाथवे होते हैं, जो इसको, इट गोज एंड ब्लॉक्स इट।
और glyphosate is very much there in wheat and half of India is eating wheat ना. तो आटा और हम्म, आटा। खास करके गेहूं का आटा जो हम्म, होता है, हम्म, इसमें देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग केमिकल कॉल्ड ग्लाइफोसेट. ग्लाइफोसेट तो हमारे पानी में भी है, अगर आप आरओ यूज नहीं कर रहे हैं तो आपके पीने के पानी में भी हो जाएगा. ओ, तो ग्लाइफोसेट क्या करता है, इट गोज टू द सेल जंक्शंस, टाइट जंक्शंस जो बोलते हैं, हमारे स्किन में होते हैं और हमारे इंटेस्टाइन में होते हैं, और ये स्मार्ट जंक्शंस होते हैं क्योंकि दे आर प्रोग्राम, दे नो हाउ टू कीप आउट द टॉक्सिन एंड टेक इन ओनली द न्यूट्रिएंट. हमारा स्किन भी जानता है और हमारे इंटेस्टाइनल लाइनिंग भी ये जानता है. इसको टाइट जंक्शंस बोलते हैं. ग्लाइफोसेट जब हम लेते हैं तो वो टाइट जंक्शंस डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. जैसे ऐसे एक इंटेस्टाइन का विलाय होते हैं ना, तो विलाय में गैप्स आ जाते हैं, तो उसको बोलते हैं लीकी गट. या तो या, अगर आपको लीकी गट हो गया तो दिस बैरियर इज कॉम्प्रोमाइज्ड, दिस बाउंड्री इज कॉम्प्रोमाइज्ड, इट्स लेटिंग इन इवन द इन्वेडर्स, letting in even the terrorists, it's letting in even the toxins, यस, and it has no that's called intestinal डिफेंस, permeability or या, leaky gut, no defense. So then the immune system comes there and it creates a itis, which is a inflammation. That is the colitis. Colon में अगर itis हो गया तो colitis है. So that is creating an inflammation because of this leaky gut. Glyphosate has to be stopped first. And even if you stop glyphosate, पानी उसका memory रखता है, क्योंकि ओ, water keeps the memory of everything that was there in it previously. यस यस यस, Hydrogen atoms जो हैं electromagnetically they store the memory of everything. That is the principle of homeopathy. ठीक है. तो इसको जो we have to change, we have to have techniques to change the memory of the water, ओके. and that nobody can teach you except in yoga. So yogis use mantras to change So the yeah, that memory. is where my next question is going. I mean, how you mentioned that you and your team is working, helping people out of, I mean, this problem. So please explain how do you do that? How people Hmm. can join you and get better? Hmm. So I also have I have a test, like I can't take everybody and anybody, Okay. क्योंकि लोगों को भी इसको प्रायोरिटाइज करना है. ठीक है. मतलब ज्यादातर लोगों को उनका डिसीज एक सोल्यूशन हो गया है ऑलरेडी, उनके रॉकी रिलेशनशिप से बचने के लिए ये एक अमेजिंग सोल्यूशन है. अगर मेरे को अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो देख तेरे वजह से ये हुआ है मेरे को, क्योंकि ये ये Blame करके game. ये इसको मैं बोलता हूँ दो पैसा का विक्ट्री, है ना. ये ये टू पैसा विक्ट्री ईगो विक्ट्री होता है. तो वी वांट दिस टू पैसा विक्ट्री ओवर एवरीबody, saying, look, because of you, I have this. So a lot of people suffering from chronic disease, they want to show to the person who hurt them, see how much you hurt me. That's why I'm sick. So I check people out and I ask them, do you have this? Are you ready to get cured? Because if you give this up, your ego also has to go. True. So when that root cause is removed, then people get disciplined. Till then, they don't have motivation. तो Yes. अगर मैं चेंजेस भी बोलूंगा कि आपको नेचर में जाना है, क्योंकि आप ये जानते नहीं होंगे कि 85% माइक्रोबायोम, माइक्रोबायोम आप जानते हैं ना, जो Very, very much. Very much. माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया और फंगाई और ये जो माइक्रोस्कोपिक क्रीचर्स होते हैं हमारे बॉडी में. मैंने बोला हमारा 10 बिलियन सेल्स में से सिर्फ 1 बिलियन ह्यूमन सेल्स हैं, 9 बिलियन माइक्रोबायोम है. ठीक है. तो अगर आपके Gut, gut, माइक्रोबायोम. gut is in the mind in itself. जब भी हमारा यस यस. स्ट्रेस होता है तो हमारे पेट में एक अंदर से एक वो एक हाँ, वो दूसरी होता बात है, है. वो नर्वस सिस्टम है. और यस, माइक्रोबायोम का भी एमआरएनए उसमें आता है. ठीक है. लेकिन बैक्टीरिया, वायरसेस एंड फंगाई जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए. अगर गुड इनका बैक्टीरिया. बैलेंस ऊपर नीचे हो गए तो that whole ecosystem gets destroyed. So 85% of our microbiome doesn't come from food. सिर्फ 15% फूड से आता है, 85% ब्रीदिंग से आता है. ओह, ठीक है. तो हम, हाँ, इट्स अ फैक्ट. मैं खाता हूँ सिर्फ एक बार, अभी इस इंटरव्यू के बाद एक बार खाऊंगा. बाकी सब मेरे माइक्रोबायोम आते हैं थ्रू माई ब्रेथ, क्योंकि
नेचर में जाके मैं एक्सरसाइज करूंगा 45 मिनट्स एवरी डे बैरफुट। तो इससे क्या होता है, बैरफुट करने से ऑल द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिकल चार्जेस विच यू गॉट फ्रॉम अ सेल फोन, लैपटॉप, एवरीथिंग गेट्स ग्राउंडेड इनटू द फ्लो। Yeah. Okay. And second thing is, as you're breathing in the nature, real nature, not a spray nature, तो लोग फार्म में जाके उसको नेचर बोलते हैं कभी कभी, लेकिन दैट्स नॉट नेचर, दैट That's विल it. मेक यू मोर सिक, दैट कैन That's it. इवन गिव यू कैंसर इफ यू गो एंड breathe in a farm. Oh. But don't breathe in a farm, go to actual nature which is not spray. ठीक है, वहां जाके आप डीप ब्रीदिंग करेंगे 40 मिनट के लिए, तो आपका दिन का सारा माइक्रोबायोम मिल गया आपको, कुछ विटामिन मिनरल्स कुछ भी जरूरत नहीं है, just by breathing in the microbiome. Okay, so if you practice this and then you take Himalayan salt, Himalayan pink salt, Mm-hmm. and take half a teaspoon, dissolve in one glass of water and drink it. You don't even need food. I need food only once, and I'm trying to train. And there are some days I go on water fast for 7 days. I don't even need food. I don't even have need that energy, because everything, and I don't lose muscles or anything like that. I don't become thin. Really? Yeah, that is, yeah. All the So nutritionists, even or protein is yeah, produced yeah, by memory of water. So if you can give the water the right memory, what you are drinking, water is essential. You can't yeah, stay without water. yes, yes. But you need the right kind of water. But food is not essential. You need very little food. Hmm. But people have got the wrong education कि इतने कैलोरीज अंदर जाने हैं। नहीं, Hmm. दूसरे भी एनर्जी सिस्टम्स हैं हमारे अंदर, Hmm. बैक्टीरिया का भी एनर्जी सिस्टम है। अगर बैक्टीरिया को अपना खाना मिल गया तो समझ लो कि आपको अपना खाना मिल गया, क्योंकि बैक्टीरिया ही प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स को खाते हैं। ह्यूमन सेल्स इसको खा नहीं सकते हैं, तो बैक्टीरिया इसको कन्वर्ट करते हैं अमीनो एसिड्स में, और इसको कन्वर्ट करते हैं शुगर्स में और कीटोन्स। ठीक है, तो ये सब आके सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इसको लेके क्रेब्स साइकिल्स के बदौलत इसको क्या बनाते हैं, एटीपी। फाइनली ह्यूमन सेल कैन ओनली कंज्यूम एटीपी, adenosine triphosphate. Okay, so it doesn't matter so much what you eat. People are too focused on diet. Diet is only 15%. 85% is lifestyle. Okay. Sleeping on time. इसके मतलब मैं क्या बोलूँ, without sleeping on time you cannot heal. And on time होता है 9 बजे को, क्योंकि 9 to 11 your liver is getting cleansed, and 11 to 1 your gallbladder is getting cleansed. और जो 9 to 1 AM अवेक रहते हैं, अमेजिंग टॉक्सिक बिल्डअप होता है उनके आंखों में। आप देखेंगे तो रिंग्स होते हैं, टॉक्सिन्स के रिंग्स होते हैं Okay. आंखों के अंदर, Okay. क्योंकि वो सो नहीं रहे हैं, और इसके ऊपर ये क्या बोलते हैं, डार्क सर्कल्स होते हैं। Dark उनको circles. हेयर बहुत ज़्यादा, स्किन भी उसका उनका अच्छा नहीं रहेगा, और ब्रेन भी उनका सीख नहीं पाएगा कुछ नया, क्योंकि ब्रेन पावर भी चला जाता है। ग्लायल सेल्स आके हमारे नर्व्स को क्लीन करते हैं। रात को अगर हम 9 बजे को सोएंगे, लेकिन लोग ये इजी डिसिप्लिन जो हमारे एंसेस्टर्स फॉलो करते थे, क्योंकि उनके पास सेल फोन नहीं थे, आज के ज़माने में इस सेल फोन ने हमारे सेहत बिगाड़ के रखा है। लेकिन सेल फोन को हम दोष नहीं दे सकते, दोष हमें देना है लैक ऑफ कनेक्शन विद आवर ओन लव्ड वंस। ये True that. प्रॉब्लम है, True that. यही बिगेस्ट प्रॉब्लम है। So one thing is sure that all the supplement industry will go out of business by you are saying that all the vitamins and minerals are useless in a way. They're not useless, क्योंकि they can be used to heal. For example, मेरे पेशेंट्स को भी मैं अच्छे सप्लीमेंट कंपनी का सप्लीमेंट देता हूँ, जो टॉक्सिक नहीं लगाते इसमें। लेकिन ज़्यादातर लोग सप्लीमेंट्स के नाम में ना, आप देखेंगे तो जो भी आपको लेटर्स आएंगे जो समझ में नहीं आएंगे, वो प्रिजर्वेटिव, परमिटेड प्रिजर्वेटिव, E1 E2 ये वो, जो आप ABCD देखेंगे ना, इसमें INS करके आएगा। ऐसे आप सप्लीमेंट्स लेंगे तो आप अपने अंदर सप्लीमेंट के साथ टॉक्सिन भी डाल रहे हैं। और सप्लीमेंट भी अगर हम माइक्रो मैनेज नहीं कर सकते बॉडी को, Okay. बॉडी कैन ओनली बी मैक्रो मैनेज, नॉट माइक्रो मैनेज। जैसे विटामिन डी कम हो गया, विटामिन डी लो,
B12 कम हो गया, B12 लो। ये कम हो गया, ये लो। जिंक कम हो गया, जिंक लो। लेकिन नेचुरली उसको आना है ना। We have to get these from our natural sources of food, so it's better to eat the right food or instead of taking a supplement most of the time. लेकिन अगर रिकवर करना है किसी को, तो कभी कभी मैं उनको शिलाजित भी दूंगा, क्योंकि शिलाजित हेल्प्स टू रिपेयर द डैमेज ऑफ ग्लाइफोसेट। ठीक है। और बढ़िया से बढ़िया सप्लीमेंट्स है, जैसे आयन माइक्रोबायोम, जो इट इज मेड फ्रॉम एंशियंट सॉइल्स। तो उसमें इट हैज द पावर टू हील द गट। तो ऐसे कुछ सप्लीमेंट्स, बोथ मॉडर्न एंड एंशियंट। अगर किसी को हार्ट प्रॉब्लम है तो मैं उनको अर्जुन छाल देता हूँ, विच इज़ अ वेरी गुड way to clear the blockages in the artery. So patients need supplements. Lekin most people are patient, so they need supplements. So once you're well, हम्म। you can manage with just regular food and lifestyle. तो रेगुलर फूड I'm not में, हाँ, useless, ठीक है? हाँ, Supplements are useful, but for yeah, those who are sick. हाँ. So today, these days, I mean, organic food is also very much catching on. It has almost become a fad, or they are overcharging it. So, do you think that it is better? बोलना चाहिए, Is ऐसे it नहीं a बोलना good चाहिए हमको। replacement? ऐसे डिवाइड नहीं करना चाहिए फूड को, ऑर्गेनिक एंड नॉन Uh, ऑर्गेनिक, ऐसे नहीं डिवाइड करना चाहिए। तो टॉक्सिक और नॉन टॉक्सिक बोलना okay, चाहिए। yeah, do that. ऑर्गेनिक फूड इज नॉन टॉक्सिक एंड यू हैव टू हैव दैट ओनली। Mm, ये फैट नहीं है। mm, बॉडी शुड नॉट बी टेकिंग इन टॉक्सिन, दिस इज नेचुरल। बट वी हैव पोल्यूटेड एवरीथिंग, देयर इज नथिंग दैट्स प्योरली ऑर्गेनिक। yeah. ऐसे हम ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन भी लेंगे Mm, तो मतलब जो पानी आता है mm, दूसरे फार्म के अंदर, वाटर आइदर ग्राउंड वाटर आता है या फ्लो करके नदी में आता है। mm, ठीक है। mm. जो भी है, अदर ओवर द सरफेस और अंडर द सरफेस, हमने उसको टॉक्सिक बना के रखा है। तो वो एक्चुअली ऑर्गेनिक फार्म्स डोंट एग्जिस्ट। Mm, सिक्किम में मे बी इट एग्जिस्ट बिकॉज सिक्किम इज राइट ऑन टॉप, mm. और नदियां वहां से होके आते हैं ना Nearest to the source. डायरेक्ट। Mm, mm, तो mm, mm. सिक्किम में आपको ओरिजिनल ऑर्गेनिक मिलेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि कर्नाटक में ऑर्गेनिक कर रहे हो, तो ये ऑर्गेनिक है ही नहीं। Basically, they say that we left our, I mean, in the practices, they say that we employ good manufacturing practices. We left the soil for 3 years to get rid of all the chemicals. But you made a very valid point. What about water? What are we going to do with the water? It is already so इस much दुनिया में contaminated. इस दुनिया Uh, में uh, काम करने से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, पैसे देने से कोई भी सर्टिफिकेट मिल सकता है आपको। yeah, very वी much हैव so. टू टेक चार्ज बाय ग्रोइंग आवर ओन फूड इफ यू कैन। If दिस we, इज अ वेरी गुड थिंग, क्योंकि हर किसी के पास एक टेरेस होता है। अगर आप अपार्टमेंट में रह रहे हो तो फिर भी एक कॉमन टेरेस होता है। mm, लेकिन अगर हम प्यार से इसमें हम अपने ऑर्गेनिक फूड खुद ग्रो करेंगे, mm, पर्माकल्चर के प्रिंसिपल्स रख के, टेरेस फार्मिंग भी हो सकता है। ठीक है। इट्स अ वेरी बेसिक एजुकेशन, और आप इसको इजीली आपको ऑनलाइन ये सारे यूट्यूब में आपको सारी टेक्नोलॉजी मिल जाएगा कि आप हाउ टू ग्रो फूड ऑन योर टेरेस और बालकनी और यार्ड। ठीक है। लेकिन वी आर नॉट लर्निंग दिस। हम mm. सोचते हैं कि ये स्किल ऑप्शनल है, लेकिन ये Yeah, स्किल yeah, yeah. ऑप्शनल है। यू हैव टू बोलते गो टाइम एंड नहीं है, बोलते हमारे पास टाइम नहीं है, हम कहाँ करेंगे ये सब, हमसे नहीं हो पाएगा. We outrightly reject it. नो एनिमल आउटसोर्सेस इट्स फूड एक्सेप्ट ह्यूमन बीइंग। Yeah. Every उसका, animal is main job is to make it find its food, except yeah. human being. I don't know why. एक डॉक्यूमेंट्री में देख रहा था, Hmm. और उसमें जो प्रिमिटिव लोग होते हैं ना, जो हंटर गैदरर्स होते हैं, तो उनको जाके पूछते व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड। थोड़ा सोच के बोलता है मीट एंड फ्रूट्स एंड हनी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन द वर्ल्ड फॉर देम। ऐसा है, उनको कुछ अल्टरनेटिव क्वालिटीज नहीं है। Uh, yes, We you have to are very. prioritize our food. Hmm. So And we have to realize specific. don't eat हाँ, too much food. People eat too much food. हाँ, हाँ. जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब वो
एक प्रॉब्लम है इसकी, खाना अगर कम खाएगा, किसी भी आदमी को, नॉर्मल आदमी को लगता है कि उसका वेट कम हो जाएगा, आइडियल वेट एंड दिस एंड दैट, हाइट के हिसाब से वो आइडियल होना चाहिए। सो उसके दिमाग में अगर वो खाना कम खाएगा तो उसका वेट कम होगा, तो एक और एक वन ऑफ द मोर स्ट्रेस में रीजन, रहेंगे। स्ट्रेस में रह जाएंगे। और अकबर और बीरबल का स्टोरी है, आप आजकल तो जानते हो? बॉडी का भी बड़ा शौक है, बॉडी बनाने का, ये सब। ये तेनालीराम का एक स्टोरी है, ठीक है? हम्म, तेनालीराम करके, ही वाज अ या मिनिस्टर इन कृष्णदेवराया's court, या ठीक है? So he someone challenged him that this goat, I want you to bring back this goat after one month with the same weight, exact same weight रखना। अच्छा। तो उसने क्या दिया, बढ़िया से बढ़िया खाना दिया उसको, लेकिन उसके साइड में एक वुल्फ को बांध के रखा, क्योंकि हाँ, हमेशा इसको स्ट्रेस रहे। तो यस यस। वो तब वो जानता था कि लोग अगर स्ट्रेस में खाएंगे तो उनका वेट कम हो जाएगा, हम्म, ठीक है? अब ये समझ लो, अगर आप कम खाना खा के आपके वेट कम हो रहा है तो आप स्ट्रेस में हैं, हम्म, और ये नेचुरल नहीं है। इसको आप एक्सेप्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ये नेचुरल, सब करते हैं तो नेचुरल है क्या? हम्म, नहीं है। कंफर्मिटी। हम्म, डोंट कंफर्म, डोंट द बिगेस्ट एक्ट ऑफ रेबेलियन जो आप कर सकते हो इज टू नॉट बी स्ट्रेस्ड इन हम्म, टुडेस वर्ल्ड। अगर आप स्ट्रेस नहीं है तो आप सबसे बड़ा रेबेल है। वेरी वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी बोल्ड एंड वेरी ट्रू। एंड people have to think on this, reflect on this. Absolutely सबको right. सबको माचो बनना है ना, हाँ तो हाँ ऐसे हाँ। मत, बिना स्ट्रेस के माचो बनिए। And it is coming from a person who is a martial artist, has been a martial artist, accomplished martial artist, and he's saying that. And you say आप that, but I liked one of your quote very much. नहीं है, है। हाँ हाँ हाँ। आपकी आपका वो कोट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। आपने बोला था कि वो फाइटर बड़ा बेकार है जो कि उसको फाइट करना पड़ जाता है। हाँ हाँ ट्रू फाइटर कैन नॉट गेट इनटू अ फाइट। हाँ, तरस आता है उस पे बैटल को फाइट करना है। So it hit me like anything. So Ashwin, now come to the question कि आप से जुड़ने के लोग क्या करेंगे एंड हाउ डू यू हेल्प पीपल, स्पेसिफिकली आप क्या करते हैं, क्लासेस लेते हैं, थेरेपी लेते हैं, और क्या जी थोड़ा जी जी, एक्सटेंसिवली, और कहाँ पे हैं आप लोकेटेड, कहाँ पे हैं? मैसूर पे हैं, पुणे में हैं, और भोपाल में भी हैं मेरे हीलर्स, ठीक है? ओके ओके तो मेरा टीम बहुत बड़ा है, और मैसूर, भोपाल और पुणे में रहते हैं, चेन्नई में भी हैं। तो इन सब एक्सपर्ट्स से आपको अगर ट्रेनिंग लेना है तो हमारा कंडीशंस है कि आपका इंटरव्यू होगा पहले। ओके। इंटरव्यू तो फ्री है, मेरा नंबर है, कोई भी मुझे कांटेक्ट कर सकता है। कोई आपका और वेबसाइट भी है? वेबसाइट तो आ रहा है, हमारे ट्रेनिंग मेथड है तेजस स्वरूपा, ओके ठीक है? इट्स अ संस्कृत वर्ड व्हिच मींस तेजस इज द इलेक्ट्रिसिटी इनसाइड द बॉडी। ओके तो हमारे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा इट्स वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंडिकेटर्स ऑफ हेल्थ। ओके तो अगर अगर कोई तेजस्वी है तो उनके इट कम्स आउट ऑफ द फेस, हेल्थ ग्लो कम्स आउट ऑफ द फेस। तो फाइनली द द गोल इज टू हैव दैट ग्लो या ना। और स्वरूपा मीन्स सेल्फ कल्टिवेशन, so self cultivation of tejas is what we teach, ओके okay? And we use many methods for it. We use both ancient modern methods for it. One of my teachers is Dr. Zach Bush, जिन्होंने इसके बारे में बहुत एक्सटेंसिव रिसर्च किया है, हाउ डज द ह्यूमन बॉडी मेंटेन हेल्थ। ओके और एज अ मेडिकल डॉक्टर ही गाइडेड मी इन taught me a lot of things. And he has a course which I recommend for everybody to do. It's called Biology Base Camp. So अगर आप ये basic course करेंगे तो you'll know everything about your health. Secondly, he is now coming up with a course which is called Beyond Biology. That's ओके। when he is talking about all the stuff that we already know in India. वंडरफुल। Or we had some we had some discussions about this with his coaches when I was doing the program. Yeah, day for So yesterday also I was hearing, I mean, listening to, watching a Western healer, not a Western, not a healer, sorry. He is a motivational speaker and
brain researcher, chiropractor, and he talked about chakras in another words. He talked about consciousness, connection of consciousness with the body. तो मैं सोच रहा था कि दे वही सारा जो एंशियंट नॉलेज हमारे पास पहले से है विच यू कॉल चक्रा एंड ही वॉज ऑलरेडी नाउ वेस्टर्न साइंस ऑल्सो कमिंग नाउ रियलाइजिंग द सेम थिंग विच वी हैव ऑलरेडी लर्न सो मेनी ईयर्स थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स. The Upanishads, we have mentioned the five body, Panchakosha. It's not just physical body. Physical body is called Annamaya Kosha. ओके. लेकिन उसके पीछे है प्राणमय कोशा, और उसके पीछे है मनोमय कोशा, उसके पीछे है ज्ञानमय कोशा, और उसके पीछे है आनंदमय कोशा. ये मय का मतलब है लविंग. अन्नमय कोशा है फूड लविंग बॉडी. ठीक है. इसके पीछे है प्राणा लविंग बॉडी. बिहाइंड दैट इज माइंड लविंग बॉडी, जो इट्स अबाउट थॉट्स एंड इमेजेस एंड कॉन्सेप्ट्स एंड ये सब. उसके पीछे है विज्ञानमय कौशल, लॉजिक लविंग बॉडी. विज्ञान हैज मेनी मीनिंग्स. इन दिस कॉन्टेक्स्ट इट मीन्स लॉजिक. तो हमारे जो फंक्शनल लॉजिक है, बेसिक सिस्टम लॉजिक है कि इफ दिस देन दैट, if this protein comes then do this reaction, if this comes then do that reaction. So ये if then का reaction logic जो है, if this and this come then do this, ये सब विज्ञान में कोश में stored है. और कर्मा जो हम कर्मा के बारे में बात करते हैं, ये भी विज्ञान में कोश में stored है. So we even know how to manipulate the karma, you know, to change the karma of a person. This knowledge is very ancient and it's been revealed to me by my guru. Only last August he told me how you can change the karma of a person. So who's your guru? Mahathir Babaji. Okay. So I stayed with him for 18 months. It was many years ago. And after that, he's been constantly coming into my life, teaching something and going. And I've been using and applying these things because he's not blocked by any passport or anything. He can go from here to Nepal wherever he wants. Keep wandering wherever he wants. So he came into my life when I was 18. Okay. Now I'm 45. So various lessons he's taught me and gone. And all of these lessons are about immortality. How can the body become immortal? He himself is immortal. He's 1,800 years old. So Amazing. his teachings are what I use to cure people. These are things, when I was living in the mountain, I used to only be a breatharian, means I had to only breathe. I was not even taking water. And I could survive in the cold without any clothes. Like minus 25 degrees. That's the temperature where he lived. Really? And I used to, yeah. This body heat, this pitta, body heat. You sit in the ice around you will melt. Oh. So I've had all those experiences. I've also had experiences of being very, very sick. So bringing these two things together, I can help people. And my team can help people because they've also been trained in the methods that I've learned from Mahathir Babaji, also from modern scientists. And I've been learning. I have the best teachers in the world. That's why we give the best teachers in the world. ग्रेट. तो अभी आपसे कांटेक्ट करने के लिए आपने बोला कि आपका नंबर है अभी जिससे हम इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे सो दैट एवरीबॉडी कैन. लेकिन वेबसाइट भी आएगा जल्दी, क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट्स इतने जल्दी चेंज हो जाते हैं. अच्छा. So we have to keep updating the website. So it's currently in the process of being updated. We'll be focusing on that. Okay. So website could be the first resource of, it could be used as a connecting tool, and it will give the basic knowledge also to people. So my last question, or the concluding question is like, तो अभी अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए क्या आप कोई स्पेसिफिक रखते हैं या जो एक जनरल एक सारा एक whole program you have which is going to help in the ulcerative colitis also, and people can a person get into remission or a cure? You're talking about cure or you're talking about remission from the ulcerative colitis? We're talking about a cure so that the person can restore his intestine to how it was before when he was young, or
before the problem started. Mm. So that's not really not a big deal that we can do within 6 to 8 months. Okay. Okay? And I'm not talking about symptomatic relief. I'm talking about a complete systematic system should get cured. And the way we live our life also should get cured. So, like I said, I'm very selective about my patients. 99% people are not ready to. They Mm. want that 2 paisa victory. Mm. So, if they've finished with the 2 paisa victory, they are matured enough to understand that their mental mindset is ruining their body, then they're ready to be a patient. Otherwise, no. That's why I don't advertise. I don't need a website. I don't need everything. It just happens by referral, right? You also Mm. found me by referral. Yeah, my So friend only. all my Mm. patients talk good things about me. Mm. We don't have to do marketing. Yeah. So we Word of get mouth. people like that. Referral. Now I'm creating a website after how many years? I started teaching in 2013. In 2013, I don't have a website. Now finally we are making one. So the Just one, because we want please. to reach more people. Mm. So for 1% of those serious people, they can get into, get in touch with you through the phone only. Yeah, yeah. Fine, well enough. So I think I have nothing to left to ask, and it has been a wonderful session with you. And it was, I mean, I could spiritually understand the things you were saying, and I mean, uh, logic is just of course is also there. Too much logic, and too much. I mean, everything is. It has its limitations. Yeah. That is what I was wanting to say. So it was very nice talking to you, Ashwin, and I am so much thankful to you for giving us your time, and hope you continue to help people like this only, giving them good health, good life, and helping people to take their life back. So it was very wonderful talking to you. Thank you so much. Same here. Thank you so much. I'll leave your contact number in the description. Anybody would want to, when serious people can connect with you. And Definitely. as soon as you come up with the website, I will also update the description so that people Thanks. can Thanks. get I'll let you know. Yeah. personally. Yeah. Thank you so much. Thank you so much, Ashwin. Thank you so much. Bye. Yeah. Bye.